Good morning, students. And today I will tell you that how you will draw the shear force and the bending moment diagram. This is my new lecture, and on the shear force bending moment diagram. In my previous lectures, I have given you all the concept regarding the shear force and bending moment. What is shear force? What is bending moment? What are the sign conventions we use there? And what is the sagging, hogging, and all these things. Even where is your this bending moment is maximum? What are the conditions for the maximum bending moment? What is the point of contraflexures and like this? So now the lecture which I have to deliver today, that is on the shear force and the bending moment diagram, that how we will draw the shear force and the bending moment diagram. And this shear force and bending moment diagram is different from different, you can say, if we will consider the different type of beams. So first of all, today I will just take the cantilever beam, right? So shear force and bending moment diagrams of cantilever beam. Shear force. This is my lecture number 5. So in every lecture, here I will shorten my lectures here because I want to give you the brief, you can say complete explanations of each and every beam, that in each and every beam how we can draw the shear force and bending moment diagram. तो आज जो मेरा लेक्चर होगा दैट इज इंटायरली ऑन द कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम का मैं आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा और उसके साथ ही देन आई विल गिव यू द कंक्लूजन आल्सो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन वी गॉट फ्रॉम हियर. तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम स्टार्ट करते हैं. सो हाफ ऑफ हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सो यू कैन से दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, दिस इज द कैंटिलीवर बीम. सो कैंटिलीवर बीम जो है वो क्या होता है, व्हाट इज द कैंटिलीवर बीम? दैट one edge of the beam is fixed and other end is free, right? So suppose this is point A and there is a load of 5 kilonewton. This is your point B. You are having the uniformly distributed load here. So this is uniformly distributed load, right? This point is B and this is C. इसका जो डिस्टेंस है ये मैं ले लेता हूँ 2 मीटर and the distance of this 1 meter and the distance of this and this is also 1 meter. So this is the problem of your cantilever beam.
यू अंडरस्टैंड दिस? तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव आप अपने रजिस्टर्स या नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए। उसमें हमें सबसे ऊपर टॉप में वी हैव टू ड्रा द लोड डायग्राम. दिस इज योर लोड डायग्राम विच इज गिवन. देन after this, below this, you have to draw the shear force diagram and then the bending moment diagram. Means all these diagrams that should be drawn on one page only. So you must take your books, notebooks, you must have a paper that is having, you can say, big paper there, so that you can draw all these three diagrams all together. You understand this? So this is your cantilever beam. अब इसको ध्यान से समझिए. दिस इज योर कैंटिलीवर बीम और मैंने क्या करना है? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है. यू अंडरस्टैंड दिस? तो क्या कीजिए, यहाँ पे ये जो है जहां से आप प्रोजेक्शंस वगैरह नीचे ड्रा कर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर हमें क्या लेना है? पॉइंट्स लेने हैं. वी हैव टू टेक द पॉइंट्स ऑन दिस. And you understand this? So first of all, we should draw the datum line. सबसे पहले जब हमें ये ड्रा करना है, हमें क्या ड्रा करना है? वी हैव टू ड्रा द डेटम लाइन. आप एक डेटम लाइन ड्रा कर लीजिए. दिस इज योर डेटम लाइन. इसको क्या बोलते हैं? डेटम लाइन एट 0 and 0. दिस इज योर डेटम लाइन एट 0 and 0. यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ अब देखिए, first we will draw the shear force diagram, or in the shear force diagram there is no need of calculation. Actually you can calculate the load, because you have to calculate the loads here and then you sum up the load, right? So but in case of bending moment you requires the calculation. तो shear force diagram में भी आपको calculation करना है, but it is very easy that you can calculate at yourself only without writing anything. ठीक है? तो जहां पे देखिए, this is your 0 0. At point A you can say the load that is 5 kilonewton that is acting in the downward direction. तो ये क्या कर रहा है? ये acting downward direction में act कर रहा है. तो जहां से आपका क्या आएगा? जहां से सडनली चेंज होगा, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर रहे हैं. सो यहां पे एक पॉइंट ले लीजिए आप. सपोज दिस इज योर पॉइंट दैट इज 5 किलो. दिस इज 0.5 किलो न्यूटन. यू अंडरस्टैंड दिस? सो नाउ जस्ट सी फ्रॉम A to B. फ्रॉम A to B देयर इज नो लोड. A to B क्या है? कोई आपका लोड नहीं है. मीन्स फ्रॉम A to V, W is equal to 0. A to V there is no load, W is equal to 0. तो जो shear force होगी आपकी, shear force जो है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था और जो कल मैंने लेक्चर आपको दिया था उसमें भी ये चीज बताई थी कि अगर आपका लोड जो है 0 होगा तो उस वक्त जो shear force होगी वो आपकी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी. क्या होगी? shear force is horizontal. You understand this? तो shear force horizontal होगी तो आप कह सकते हैं, so from this point to this point, इस पॉइंट तक आपका लोड देखिए यहां पे there is no load. तो shear force क्या होगी आपकी? horizontal, and you will draw the horizontal line up to the point B. You understand this? अब उसके बाद देखिए, this is your uniformly distributed load.
सो आई थिंक इसका जो वैल्यू है मैं ले लेता हूं 4 किलो न्यूटन पर मीटर। 4 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जहां पे कितना लोड इसका आएगा, 4 इंटू 2 मीन्स 8 किलो न्यूटन पर मीटर। कितना आएगा, 8 किलो न्यूटन per meter, and this load will also act downward direction. Here we don't require the point that where this load is acting. That is only needed in case of the bending moment, right? But only you have to calculate the total load, that is the uniformly distributed total load, and total load is 4, and the length is from here to here. This is given as 2 meter. So this is 4 kilonewton, 4 kilonewton पर मीटर। तो 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा लोड आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना हो जाएगा, मैं लिख लेता हूं यहां पे। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द लेंथ 4 इंटू 2 दैट इज 8 किलो न्यूटन। 8 किलो न्यूटन, तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 किलो न्यूटन लोड इज ऑल। इसके इधर लेफ्ट साइड में देखिए, पॉइंट सी से आप लेफ्ट साइड में देखिए, एक लोड आपका -5 किलो न्यूटन है और एक लोड आपका 8 किलो न्यूटन है, एंड दैट इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। तो हमारा ये जहां पे आप कह सकते हैं, ये जहां पे पॉइंट आया -13 किलो न्यूटन, -13 किलो न्यूटन, राइट? -13 किलो न्यूटन, 13 किलो न्यूटन, यू अंडरस्टैंड दिस। अब मुझे बताइए, दिस इज योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, इन केस ऑफ दिस सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली distributed load means W proportional to X, right? W proportional to X। तो इसमें जो आपका shear force का स्लोप आएगा, shear force आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी यहां पे, shear force is straight line। तो जहां पे जो शेयर फोर्स होगी वो आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, जहां से लेकर जहां तक कोई लोड नहीं है, अगेन देयर इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और एट द एंड मैंने आपको क्या बताया था, ये 0 से स्टार्ट होगी शेयर फोर्स और 0 पे जाके खत्म होगा। तो ये आपका यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज योर shear force diagram। सो दिस इज योर shear, so this is your shear force diagram। You understand this? You understand the shear force diagram, you understand its concept। Means one thing you have to note down there, that ये जो मैंने आपको इसके पैरामीटर्स दिए थे कि अगर आपका नो लोड है तो उस वक्त शेयर फोर्स कैसे होगी, स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स किस तरीके से होगी, और स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कैसे होगी। अगर आपका लोड प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उस वक्त आपकी शेयर फोर्स किस तरीके से होगी, कैसे होगी, दैट इज लीनियर, एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज पैराबोलिक। एंड इफ you can say W proportional to X square, means in case of the variable distributed load, this is the uniformly distributed load। in case of variable distributed load means W proportional to X square, उस केस में आपकी जो शेयर फोर्स होगी
वो क्या होगी, पैराबोलिक होगी, और जो बेंडिंग मोमेंट की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, क्यूबिक पैराबोला होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये चीजें आपको हमेशा मेमोराइज होनी चाहिए। रटा लगा लो, जो मर्जी कर लो, जिस तरीके से भी कर लो, बट दैट शुड बी ऑन योर टिप्स। दीज थिंग्स दैट शुड बी ऑन योर टिप्स, यू मस्ट मेमोराइज इट। और अगर आपने मेमोराइज इसको कर लिया, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम इन केस ऑफ यूर दिस गेट एग्जामिनेशंस, PSU एग्जामिनेशंस, इवन आपके AE, JE जो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि यू विल जस्ट वेस्ट द टाइम। सो दीज थिंग्स दैट शुड बी मेमोराइज्ड। और इसको मैंने एक दफा नहीं, मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं, एक तो मैंने पूरा लेक्चर इसका दिया है, उसे आप अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जाने से पहले जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं, वो सारे लेक्चर 1 by 1 आप अच्छे तरीके से उन लेक्चर को पढ़ें। एकदम डायरेक्टली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर मत आइए, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो इसको करने के लिए इसमें मैंने कंप्लीट कंसेप्ट, जो जितना भी एक कंसेप्ट है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का, वो मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट दिया है। और अगर आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर योर, आपको बुक्स का या आपको कोई और नोट्स पढ़ने का या कहीं से भी कुछ पढ़ने का, देयर इज नो नीड इन दैट, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन वेरी क्लियरली, और काफी डिटेल में हर चीजों को मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम आपने ड्रा कर लिया। सो आई थिंक सो दिस शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं कैंटिलीवर के केस में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मेरे पास इतना स्पेस तो नहीं है जहां पे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए, राइट? तो जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि जहां पे ही अकोमोडेट करने की, लेकिन आपने एक चीज नोट की कि जब भी आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है, यू मस्ट हैव ए, आपके पास एक बड़ा पेज होना चाहिए, बड़ा कागज पेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपने तीनों डायग्राम्स एट ए स्ट्रेच ड्रा करनी है। लोड डायग्राम ड्रा करनी है, उसके बाद ये शेयर फोर्स डायग्राम आएगी, और उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगी। तो चलो मैं जहां पे ही इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अकोमोडेट करने की कोशिश करता हूं, तो इसको आप थोड़ा सा और नीचे ले जाइए, बिकॉज अच्छे तरीके से पेन कापी लेके, अपनी स्केल वगैरह लेके, तो इसको आपने अच्छे तरीके से इसको बनाना है, क्योंकि जैसे ये वैल्यूज आपको दी हैं -5 किलो न्यूटन, -13 किलो न्यूटन, लाइक दिस। तो ये जो वैल्यूज हैं, इसमें आपको कम से कम थोड़ा रैशनलाइजेशन जरूर रखनी चाहिए कि अगर -5 किलो न्यूटन है तो 30 किलो न्यूटन है, तो थोड़ा सा, अगर ये 5 किलो न्यूटन है तो 13 किलो न्यूटन के लिए मुझे जहां पे थोड़ा सा पॉइंट लेना चाहिए था, बट आई हैव ए लिमिटेशन ऑफ द स्पेस। तो इसलिए आपको अपना पूरा जो भी है मेयरिंग स्केल, सारी चीजें अपने अच्छे तरीके से अपने पास रखनी है, और इसको बड़े खूबसूरत तरीके से खुद अपने रजिस्टर के ऊपर, अपने पेपर्स के ऊपर खुद आपको इसको बनाना है, क्योंकि अगर आप खुद इसको ड्रा करेंगे, अच्छे तरीके से ड्रा करेंगे, तो ये चीजें आपको आगे जो है ज्यादा इजी हो जाएगी करने के लिए। अब देखिए, आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मूवमेंट्स निकालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, हमें मूवमेंट निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, मूवमेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो MA, जो मूवमेंट आपका A के ऊपर होगा, दिस इज इक्वल टू 0। बस नाउ यू कम टू MB, जो आपका मूवमेंट MB होगा, तो ये कितना होगा, 5 × 1, दैट इज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस इज नेगेटिव। सो MB इज इक्वल टू -5 × 1, दिस इज -5 किलो न्यूटन मीटर, यस, 5 किलो न्यूटन मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? तो जी आपने निकाल लिया। -5 किलो न्यूटन। अब आप आ जाइए MC के ऊपर।
MC के ऊपर कितना मूवमेंट होगा, जहां से अगर MC के ऊपर हम देंगे तो देयर आर टू फोर्सेस, एक फोर्स है ये 5 into 3 MC में -5 into 3 दैट इज 1 + 2 3। अब आ जाइए इस फोर्स का, राइट। तो ये फोर्स क्या होगी, 4 into 2 8 एंड दिस फोर्स विल एक्ट एट द सेंटर। ये कहां पे एक्ट करेगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट में, सेंटर में। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा ये आपका होगा 1 मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आ जाएगा -4 into 2, 4 into 2 that is the load. Note where the load is acting. In case of uniformly distributed load, as I have already told you or already given the lecture in that the uniformly distributed load that will act on the centroid, and this is a rectangle. Just assume that uniformly distributed load, it is just like a rectangle triangle. तो इसका जो centroid होगा that is at the center होगा, and if it is having a जहां से लेकर जहां तक जो लेंथ है इसकी 2 मीटर है, so it means that the load will act at the point 1 meter. So this is equal to into 1. You understand this? So this is equal to -23 kN per meter. You understand this? तो पहले हम क्या करें, इनके पॉइंट ले लें। ये जहां से अगर शुरू करते हैं तो जहां पे ये आ गया बेंडिंग मोमेंट, जहां से शुरू करें ये आ गया आपका MA, दूसरा MB कितना है -5 kN। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं जहां पे इधर -5 kN एट पॉइंट B। MC कितना है -23 kN। तो मैं कह लेता हूं कि जहां पे MC जो तीसरा पॉइंट है, राइट, ये है आपका -23 kN। यू अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास पॉइंट्स हमने ले लिए, अब हमने क्या करना है, इसको सिर्फ कर्व्स को ड्रा करना है। अब आ जाइए फिर पॉइंट्स के ऊपर। अगर आपकी W = 0 शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप, आपकी शेयर फोर्स की स्लोप क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती, एंड द बेंडिंग मोमेंट इज द स्ट्रेट लाइन। जहां पे आप देखिए W क्या है, 0 है, फ्रॉम हेयर टू हेयर W = 0, शेयर फोर्स इज हॉरिजॉन्टल एंड you can say shear force is horizontal and bending moment diagram क्या होगी, ये होगी इस तरीके से, इंक्लाइन होगी। यू अंडरस्टैंड दिस। इस पॉइंट से जहां तक क्या होगा, ये लीनियर होगी या स्ट्रेट होगी। ठीक है, ये आपको पॉइंट पता है कि अगर आपकी शेयर फोर्स डायग्राम, अगर आपका W 0 है तो शेयर फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल होगी और जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका लीनियर होगा या स्ट्रेट लाइन में होगा। सो फ्रॉम A to B इट इज लीनियर। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। जब फर्स्ट केस में मैं इधर लिख लेता हूं, फर्स्ट केस क्या था, फ्रॉम, जिसमें आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज देयर नो नीड टू राइट इट। फ्रॉम A to B क्या है, W = 0, लोड क्या है, 0 है। तो इस केस में शेयर फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन और लीनियर। और लीनियर भी बोल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब आ जाइए अपने सेकंड केस में।
जहां पे देखिए लोड क्या है आपका, W है UDL। W क्या है, UDL मीन्स प्रोपोर्शनल टू X। जैसे जैसे X की वैल्यू बढ़ती जाएगी लोड जो है इसका चेंज होता जाएगा, राइट। मीन्स UDL प्रोपोर्शनल टू X। तो इस केस में SF क्या होगी, लीनियर होगी, या स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, लीनियर होगी। और बेंडिंग मूवमेंट आपका कैसे होगा, पैराबोलिक होगा। क्या होगा, याद रखना है, बेंडिंग मूवमेंट आपका पैराबोलिक, बेंडिंग मूवमेंट इज पैराबोलिक। यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें अब बेंडिंग मूवमेंट आपने पैराबोला बनाना है। अब देखिए पैराबोला आपका इस तरीके से भी बन सकता है और पैराबोला आपका इस तरीके से भी बन सकता है। अब द प्रॉब्लम इज कि हमें पैराबोला किस तरीके से बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना है या इस तरीके से बनाना है। अब देखिए अंडरस्टैंड दिस कि पैराबोला हमारा कैसे होगा। फर्स्ट यू सी हियर, आपको एक रिलेशन पता है जो आपका dm/dx है, dm/dx दिस इज इक्वल टू s। ये रिलेशन जानते हैं ना, मीन स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट दिस इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो अगर आपकी शेयर फोर्स जो है, शेयर फोर्स इज इंक्रीजिंग, अगर शेयर फोर्स जो है इंक्रीजिंग है या शेयर फोर्स स्लोप जो है इंक्रीजिंग है, तो बेंडिंग मूवमेंट भी क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज स्लोप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू एस, शेयर फोर्स। तो जहां पे आप देखिए, जैसे शेयर फोर्स थी जहां पे ये 5 किलो न्यूटन थी, राइट, और जहां से लेके जहां तक शेयर फोर्स आ गई 13 किलो न्यूटन। यू फॉरगेट अबाउट द साइन, दिस इज माइनस साइन, यू फॉरगेट अबाउट दैट, यू ओनली सी द मैग्नीट्यूड। तो आपने देखा कि जो आपका शेयर फोर्स था दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 5 किलो न्यूटन टू 30 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स आपकी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो जब शेयर फोर्स आपकी इंक्रीजिंग होगी तो बेंडिंग मूवमेंट जो आपको मिलेगा वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। आप बेंडिंग मूवमेंट आपने इंक्रीजिंग ड्रा करना है तो उसके लिए क्या करें, सपोज ये आपका 0 है, इस पॉइंट के ऊपर करना है, ये आपका 90 है, 0 to 90 करना है। तो ये बेंडिंग मूवमेंट आपका इस तरीके से होगा, इंक्रीजिंग बेंडिंग मूवमेंट। This is the bending moment, increasing bending moment or increasing parabolic, increasing parabola। तो ये आपका आ गया सॉरी, ये आपका था 0 पॉइंट, आपने इस पॉइंट के ऊपर डालना है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये आप 0 है, ये सपोज करो आपका हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से है ना। तो इसको आप इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दीजिए आप, राइट। सो दिस इज योर इंक्रीजिंग पैराबोला। यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज योर इंक्रीजिंग पैराबोला। और अब जहां पे आ जाइए, फ्रॉम हेयर टू हेयर द लोड इज, फ्रॉम हेयर टू हेयर क्या होगा, आपका लोड जो है, लोड इज 0। आप अगर इस पॉइंट के ऊपर आए, MC वी हैव कैलकुलेटेड मूवमेंट एट पॉइंट MC, एंड नाउ व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट D। D के ऊपर क्या मूवमेंट होगा आपका, व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट D।
डी के ऊपर मोमेंट कितना होगा, कैलकुलेट दिस। सो एक्चुअली इट इज, इसको मैं सेपरेट बना लेता हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि ये जहाँ पे व्यू नहीं होगी प्रॉपरली। माइनस इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं बेंडिंग मोमेंट की। एम बी था आपका, कितना था, -5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन मीटर। एम सी -23 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरीके से एम डी निकालेंगे। एम डी कितना आएगा, एम डी देखिए इधर से मूवमेंट पहले जगह -5, 1 2 3 4, सो -5 into 4, -5 into 4, the distance is 1 meter plus 2 meter, 3 meter plus 1 meter, 4, and then this is the load minus, इसके आगे क्या आएगा, -4 into 2, this is the total load and this is acting here at this point, 1 meter plus 1 meter means 2 meter, right? You understand this? The load is acting here. अगर मैं जहां से इसका डिस्टेंस करूं, so from here to here 1 meter and from here to here 1 meter, that is 2 meter. So this is equal to MD is equal to -36 किलो न्यूटन मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? ये वैल्यूज आपने सारी रिएक्शंस निकाल ली, लेकिन ये डायग्राम मैं इधर ड्रा करता हूं क्योंकि जहां पे प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो आई विल जस्ट ड्रा दिस डायग्राम सेपरेटली। बट आपको सेपरेटली ड्रा नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी होने की वजह से बोर्ड में, तो ये चीजें आपने नोट कर ली हैं। तो ये तो सारा पैरामीटर्स थे, ये मैंने आपको लिखा है, नोट कर लो, और जहां से मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं सेपरेटली ड्रा कर लेता हूं इसकी। तो क्या करेंगे हम, चलो ये करना तो पड़ेगा जी। सो बेंडिंग मोमेंट के लिए दोबारा ये बीम तो मुझे ड्रा करना पड़ेगा। दिस इज बीम, दिस इज बीम, राइट, कैंटिलीवर बीम। बट ये आपको नहीं ड्रा करना है, ये मेरे पास स्पेस नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि फिर आपने नीचे डेटम लाइन लेनी है और उसके बाद इसको करना है, राइट। तो जहां पे क्योंकि मुझे एबीसी पॉइंट चाहिए थे, इसलिए मैंने ये दोबारा ड्रा करना पड़ा मुझे। सो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, राइट। जहां पे आपका 5 किलो न्यूटन, जहां पे आपका लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम हियर अप टू दिस पॉइंट, राइट। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, दैट इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर। बस दिस इज द डायग्राम। तो देखो मैं जहां पे अब सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही ड्रा करूंगा। सो बेंडिंग मोमेंट भी पहले आपने क्या किया, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा किया, उसके बाद दोबारा आपने क्या किया, डेटम लाइन ले लिया। तो यू कैन अज्यूम दैट इट इज कंटिन्यूड हियर। आप क्या अज्यूम करेंगे कि ये चीज जो है, जैसे मैंने इधर डेटम लाइन दिया था, दिस इज योर डेटम लाइन, यहां से 0 0, और उसके बाद ये मैंने लाइन ड्रा की थी और इसके बिल्कुल नीचे मैंने लिया था, बट स्पेस कम होने की वजह से तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो चलिए देखिए, तो फॉर बेंडिंग मूवमेंट, अब ये बेंडिंग मूवमेंट के लिए मैं एक डेटम लाइन लूंगा 0 0, जो कि मैंने जहां पे ली है। अब मैं इसके सेपरेट इसको ड्रा कर रहा हूं 0। अब देखिए MB की वैल्यू मैंने निकाली है 5
तो इसमें -5 ये पॉइंट आ गया, -5 किलो न्यूटन पर मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें पॉइंट आ गया कितना, MC कितना है, -23। तो MC सपोज आपका ये आ गया -23 किलो न्यूटन पर मीटर, और यू अंडरस्टैंड दिस। और MD जो है, MD कितना है, -36। तो मैं सपोज जहां पे ले लेता हूं, क्योंकि ये देखना पड़ेगा मुझे ये यहाँ पे कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। यस, तो ये आपका आ गया -36 किलो न्यूटन पर मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये सारे पॉइंट मैंने ले लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने लिख के बताया आपका, कि अगर आपका शेयर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो ये लाइन आपकी बेंडिंग मोमेंट की क्या होगी, लीनियर होगी, जस्ट लाइक दिस फर्स्ट। और उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कौन सा होगा, पैराबोलिक होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अगर आपकी शेयर फोर्स लीनियर है, स्ट्रेट है, तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोला होगा। और पैराबोला कौन सा होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपने देखना कि अगर आपकी शेयर फोर्स इंक्रीज कर रही है तो बेंडिंग मोमेंट आपका इंक्रीज करेगा, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट जो है dm/dx = s, शेयर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द शेयर फोर्स। इफ द शेयर फोर्स इज इंक्रीजिंग, your this bending moment, उसकी जो स्लोप होगी that will be the increasing slope, and if the shear force is decreasing तो slope is decreasing। तो जहां पे ये मैं 0 पॉइंट लिया, ये सपोज आपको ये इस तरीके से ट्राई करना है, ये 90 है, तो 0 को आप 90 से इस तरीके से मिला दो, तो ये आपकी स्लोप आ गई इंक्रीजिंग पैराबोला। यू अंडरस्टैंड दिस? उसके बाद क्या है, फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर इज नो लोड, फ्रॉम C to D देयर इज नो लोड। तो इसका मतलब ये लाइन फिर आपकी क्या होगी, लीनियर होगी इस तरीके से। ये लाइन क्या होगी, लीनियर होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? और जहां पे ये 0 0 में जाके मिल जाएगा इस तरीके से। सो ये आपका बेंडिंग मोमेंट, ये आपका बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका हो गया। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। एक फर्स्ट जो मैंने केस लिया था, इसमें एक कंसंट्रेटेड लोड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब दूसरा इसमें मैं केस लेता हूं कि जिसमें आपका बेयरिंग लोड हो, आपका कपल भी एक्ट कर रहा हो, सो दैट कि आपको कैंटिलीवर में जितने भी ऑप्शंस होंगे, कंसंट्रेटेड लोड ऑप्शन होता है, एक UDL होगा, एक UVL होगा, और एक किसी पॉइंट के ऊपर कपल एक्ट करेगा। तो नेक्स्ट में उसमें आपका कपल भी होगा, UVL भी होगा, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम वो देखते हैं। तो देखिए आगे। Now just see the second problem. तो हम जहाँ पे ये आपका बीम है, योर बीम, कैंटिलीवर बीम की ही प्रॉब्लम दूंगा मैं। ये कैंटिलीवर बीम में इसमें सारी, दिस इज योर फिक्स्ड एंड, राइट, दिस इज योर फिक्स्ड एंड, and here the load is suppose load is 2 kilonewton, and then there is a, yes,
So there is a uniformly, this is uniformly bearing load this is a uniformly bearing load from here to here. This you can say 6 meter from here to here. This is your 6 meter, and this is point A. So this is your point B, and this is your point C, and this is your point D. These are the point, and at point B, there is a couple. At point B, there is a couple like this. That is 4 kilo. That is a couple 4 kilonewton per meter. तो जहां तक जो डिस्टेंस है, ये ले लीजिए आप 2 मीटर। जहां तक जो डिस्टेंस है, ये ले लीजिए 3 मीटर। You can say this is 3 meter in the problem, and this is 2 meter, right? So this is your problem. This is your cantilever beam. Again, you have seen that there is one end is fixed and the other end is free. There is one end is fixed and the other end is free. Now we have to draw shear force and bending moment diagrams. So first I will start the shear force diagram. सबसे पहले क्या करेंगे, इसका shear force diagram ड्रा करेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने कंसेप्ट आपको पूरा समझा दिया है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज का देखना है कि जब से concept is same, only the couple at the point B and there is a uniformly bearing load. How we'll do it? So इसमें भी आप वही कीजिए, एक मेयरिंग स्केल करके आप क्या करें, इसमें ये इस तरीके से लाइन सब प्रोजेक्शंस ड्रा कर लीजिए, बिकॉज जस्ट लाइक दिस, राइट? नाउ ड्रा द डेटम लाइन। आप क्या करें, एक डेटम लाइन ड्रा कर लें। सो डेटम लाइन सबसे पहले हमने लोड डायग्राम ड्रा करना है, दूसरी हमने डेटम लाइन ड्रा करना है एट पॉइंट 0 and 0. दिस इज योर डेटम लाइन. दिस लाइन इज कॉल्ड द डेटम लाइन. अब मुझे साथ साथ में आप भी बताते जाइए हाउ वी विल ड्रा द शेयर फोर्स डायग्राम. तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रा द शेयर फोर्स डायग्राम, एंड फॉर ड्राइंग द शेयर फोर्स डायग्राम ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द लोड. हमें क्या करना है, सिर्फ लोड हमें फाइंड आउट करना है. सो देखिए, दिस इज पॉइंट ए. ये क्या है आपका पॉइंट ए है, जहां पे लिखिए द लोड 2 किलो न्यूटन दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. तो लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो वी विल टेक माइनस वैल्यू. तो जहां पे क्या होगा इसका, ये आप जहां पे इस तरीके से 2 किलो न्यूटन जहां पे ले लीजिए. सो दिस इज -2 kilonewton. You understand this? From A to B there is no load. From A to B there is no load. और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर W is equal to 0 when there is no load, then the shear force diagram, that is the horizontal, then there is a horizontal line. Slope इसका क्या होगा, horizontal होगा. So from A to B we will draw the स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एट दिस पॉइंट. अब मुझे देखिए पॉइंट बी के ऊपर आपका ये कपल एक्ट कर रहा है. दिस इज कपल, दिस इज द मूवमेंट इज एक्टिंग एट पॉइंट बी. सो टेल मी
whether couple is a force? No, couple is not a force. So it means that at point V no force is acting, है ना. इसके ऊपर भी क्या है, W is equal to 0, जहां पे सिर्फ कपल एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट नहीं कर रही. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ कि आपने इधर 4 देखा और इधर से 4 ले लिया. नो, नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट इज अ कपल. So couple or movement is not a force, so it means that the force is uniform from here to here. So means up to point C क्या होगा कि लाइन आपकी स्ट्रेट ही चलेगी. यू अंडरस्टैंड? ये पॉइंट आपको समझ आ गया? From A to C, I will say W is equal to 0. From A to C, from मैं लिख लेता हूं यहां पे, from A to C, W is equal to 0. Therefore, shear force is horizontal, represented by the horizontal. Slope of the shear force is horizontal line. समझ आ गया ये पॉइंट? Because at point B, there is couple is acting at point B, but couple is not a force. So we don't have to confuse ourselves with this value. Okay, there is a 4 kilonewton value and we will just treat that value as a force. Not like that. So it means that there is no load. So from here to up to point C, it is a straight line. It is clear? It is a straight line. अब आ जाइए इस पॉइंट के ऊपर. अब इसमें देखिए इस पॉइंट के ऊपर, हाँ, लोड कितना दिया है इसको? लोड दिया 5 किलो न्यूटन पर मीटर. तो आपका लोड है 5 किलो न्यूटन पर मीटर. लोड इज लोड इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर. तो जहां से लेके जहां तक कितना है ये 6 मीटर. तो लोड कितना हो गया? 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30. तो ये पॉइंट जहां पे ये अगर 2 है तो मैं ज्यादा दूर नहीं लूंगा, बट एज पर स्केल अगर देखें तो ये पॉइंट और नीचे आएगा. सो मैं यहां पे आपको -30 किलो न्यूटन ले लेता हूं लोड. दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, so it is -30 किलो न्यूटन. यू अंडरस्टैंड दिस? अब मुझे इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने प्लॉट करना है फॉर द शियर फोर्स डायग्राम. अब देखिए जो जहां पे एक डिफरेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जहां पे आपका जो लोड है दिस इज ए यूवीएल लोड, दैट इज द यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड. जो यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड होगा, जैसे मैंने बताया था, फॉर यूवीएल, यूवीएल का क्या मतलब है? W proportional to x square. For UVL, W proportional to x square. So your slope है आपकी, that is dx upon dx. This is equal to W. तो अगर आपका W आपका proportional to x square है, अगर आपका W proportional to x square है, इसका मतलब है slope of this shear force that is also proportional to x square. Means जब UVL लोड होता है तो मैंने जैसे आपको बताया shear force जो स्लोप होगी वो क्या होगी? पैराबोलिक होगी. What is the slope of shear force? That is the parabolic slope. You understand? अब देखिए पैराबोलिक तो हो गया, वही पॉइंट आ गया कि क्या हमें इस तरीके से पैराबोला लेना है या इस तरीके से पैराबोला लेना है. दैट वी हैव टू फाइंड आउट. अब देखिए जहां पे लोड आपका 0 था, एंड हियर यू हैव फाइंड दैट you have found this thing that your load is increasing from 0 to 5 kilonewton per meter. आपका लोड जो है with respect to the value of x, your load is increasing. अगर आपका लोड इंक्रीजिंग है तो ds upon dx is equal to w है. तो अगर आपका लोड इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होगा? जो शेयर फोर्स की जो स्लोप होगी दैट इज इंक्रीजिंग. जो शेयर फोर्स की जो स्लोप होगी दैट इज क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी. उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी.
तो इंक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग मीन्स फ्रॉम 0 to 90, इंक्रीजिंग का यही मतलब है ना। तो मीन्स आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए 0 to 90, राइट। सो दिस इज योर इंक्रीजिंग स्लोप। और फिर आप, क्योंकि ये आपका मैंने आपको बताया ये 0 0 के ऊपर मिलना है, तो ये आपका 0 0 के ऊपर हो गया। सो दिस इज योर shear force diagram. You understand this? This is your shear force diagram in case of couple and uniformly bearing load as well as the point load is acting. When three loads are acting, they are all when there are the three values. One is the concentrated load, one is the couple, and the other one is the UVL. तो उस केस में आपको किस तरीके से करना है ये आपको क्लियर हो गया। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, सिर्फ इस पॉइंट को हमें ध्यान देना है। बिकॉज एट पॉइंट बी देयर इज ए कपल दैट इज 4 kilonewton per meter, so it means that couple is not a force, couple is not a load, so it means that the load from A to C that is 0, load from A to C that is 0। तो इसलिए हमने जो A to C लोड था वो मैंने 0 कंसिडर किया, और जब मैंने लोड कंसिडर किया तो जो आप इसकी स्लोप होगी shear force की at if W is equal to 0, that is the horizontal line. So from A to C there is a horizontal line। और जब this is a uniformly bearing load, तो uniformly bearing load का भी आपको बताया। uniformly bearing load का क्या मतलब है कि W proportional to x square, और जब W आपको proportional to x square होगा तो shear force की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक होगी। तो स्लोप इसकी पैराबोलिक थी, एंड देन वी हैव टू सी वेदर इट इज ए डिक्रीजिंग पैराबोला और इंक्रीजिंग पैराबोला। दैट डिपेंड्स अपॉन द value of the load, whether the value of the load is increasing or the value of the load is decreasing. But here you have seen that the value of the load is increasing from this point to this point, so the slope of this जो इसका पैराबोला होगा shear force का, that is in the increasing order। तो इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया, और ये आपका shear force डायग्राम हो गया। दिस इज योर shear force डायग्राम। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू योर दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए तो मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं सेपरेट ही जहां पे ड्रा करता हूं, तो इसको मिटा लूंगा मैं, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मुझे अगेन आई हैव टू ड्रॉ दिस। ये आपका कैंटिलीवर बीम है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, one end is fixed and the other end is free like this। तो जहां पे जो लोड है दिस इज 2 kilonewton। उसके बाद ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ए बी, दिस पॉइंट इज बी, and at point B the couple is acting। B के ऊपर क्या है आपका, ये इस तरीके से कपल एक्ट कर रहा है। दिस इज द कपल दैट इज 4 kilonewton, कपल पर मीटर नहीं होगा, दिस इज 4 kilonewton मीटर, 4 kilonewton मीटर। दिस इज योर कपल इज एक्टिंग हियर, दिस इज योर कपल with point B, and then here is the point C। आप कह सकते हैं ये पॉइंट आपका क्या है, C है। this point is C, और जहां पे आपका बेयरिंग लोड होगा फ्रॉम पॉइंट C to D, there is a bearing load। सपोज करो दिस इज योर बेयरिंग लोड, and this point is D। ये लोड है 5 kilonewton per meter। You understand this? So this is, ये था
क्योंकि ये मुझे इसलिए ड्रा करना पड़ा कि आई हैव टू ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आई एम नॉट हैविंग द स्पेस। और जैसे मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं, ये सारी चीजें एक ही स्पेस पे होना चाहिए। सबसे ऊपर लोड डायग्राम, दूसरा आपका शेयर फोर्स डायग्राम, एंड थर्ड वन इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको उसी तरीके से, इसको लाइंस को आपने आगे बढ़ाते जाना है इस तरीके से। और ये आपने जहां पे सपोज जहां पे आपने 0 0 का डेटम लाइन लेना था फॉर बेंडिंग मोमेंट लाइक दिस, इसके बाद अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी थी, जो कि मैं जहां पे ड्रा कर रहा हूं। तो जस्ट लाइक दिस, राइट। तो इसके हम लोड भी लिख लेते हैं, इसकी लेंथ की वैल्यू भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें जरूरी चाहिए। 3 मीटर, 2 मीटर एंड 6 मीटर एंड 6 मीटर, राइट। ये आपकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट मूवमेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट। सॉरी, जहां पे थोड़ा सा गलत कर दी मैंने डायग्राम को, बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड एक्चुअली। तो यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड था, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कि यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड कैसे होगा। ये थोड़ा सा गलत हुआ तो वैल्यूज इसको मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। तो इन यूवीएल, है ना, देखिए जहां से लेके जहां तक लोड कितना है आपका, -2 प्लस यूवीएल का लोड कितना होगा, दिस इज 1/2 इंटू व्हाट इज वेस 6, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, इंटू 5, बेस इंटू हाइट, यही होगा ना। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। Actually, I have just assumed it as a UDL. I have not seen it properly. So this load is now -2 and -15. So this is -17. ये कितना होगा, -17 किलो न्यूटन। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट ये होगा आपका -17 किलो न्यूटन। यू अंडरस्टैंड दिस। तो जूवीएल अगर आपका होगा तो याद रखना है, जूवीएल के केस में लोड का क्या फार्मूला होता है कि जूवीएल में जो लोड आपने निकालना है वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही है ना। इट इज जस्ट लाइक ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेस आपको दिया है 6 मीटर और हाइट जो लोड की जो वैल्यू है दैट इज द हाइट, वी विल कंसिडर दिस। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 5, तो मीन्स 15। तो ये जो यूवीएल लोड आपका होगा ये क्या होगा, -15 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड कितना हो गया, -2 किलो न्यूटन। अगर जहां से चले -2 किलो न्यूटन एंड -15 किलो न्यूटन, दैट बिकम्स -17 किलो न्यूटन। और ये पॉइंट आया -17 किलो न्यूटन, और जिसको आप ऐड ज्वाइन कर लें, और ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम होगा। अब आ जाइए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करने से पहले। तो बेंडिंग मूवमेंट से पहले हमें, क्योंकि जहां पर भी शेयर फोर्स में भी थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशंस कर लेनी चाहिए जब आपका यूवीएल वगैरह हो, जैसे ये आई हैव स्किप दिस थिंग। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करने से पहले सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका एक डेटम लाइन ड्रा कर लेता हूं, 0 और 0। अब मेरे पास ये स्पेस है जहां पे मैं बेंडिंग मूवमेंट, तो एम ए, देखिए एम ए तो आपका क्या होगा, 0 होगा। अब आ जाइए मूवमेंट एट पॉइंट बी, मूवमेंट एट पॉइंट बी। देखिए मूवमेंट एट पॉइंट बी, हियर यू विल फाइंड द 2 मूवमेंट्स। ध्यान से देखिए, सुनिए, पॉइंट बी के ऊपर आपके पास क्या होंगे, 2 मूवमेंट होंगे। एक मूवमेंट आपका क्या होगा, -2 इंटू 3, मीन्स 2 मूवमेंट्स होंगे इसमें, 2 मूवमेंट्स। वन जो मूवमेंट आएगा आपका, जो एक मूवमेंट आपका आएगा वो क्या आएगा,
-2 into 3, that is -6 kilonewton मीटर। और जो मूवमेंट एट पॉइंट बी है वो क्या है, 4 किलो न्यूटन है। तो जहां पे क्या होगा, सडन चेंज होगा मूवमेंट, और जो दूसरा मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर होगा वो क्या होगा, -6 -4, दैट इज -10 किलो न्यूटन। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो एट पॉइंट बी you will get the two movements. One movement is -6 and the other movement is -10, that is with the couple। क्योंकि जहां पे क्या है, कपल है, तो कपल भी अगर आप देखें तो कपल इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर लेफ्ट साइड से हम देखते हैं कपल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो व्हाट इज द साइन कन्वेंशंस देयर, माइनस। सो -6 2 into 3 6, that is also anti-clockwise। anti-clockwise means negative sign, minus at point B this is also anti-clockwise। तो जहां पे जो दूसरा मूवमेंट होगा -10 किलो न्यूटन। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट के ऊपर, पॉइंट एट सी। सो सी के ऊपर हमें मूवमेंट निकालना है, तो क्या आएगा, 2 into 3 + 2 5। तो मूवमेंट एट सी कैलकुलेट करें, 2 into 5 दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, -2 into 5 एंटी क्लॉकवाइज। अब जे भी आपका माइनस है, -4, सो -4, तो कितना आएगा ये, दिस इज -14 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। दिस इज -14 किलो न्यूटन पर मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? अब चौथा हमें कैलकुलेट क्या करना है, मूवमेंट एट पॉइंट डी। आप हमें पॉइंट डी के ऊपर मूवमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका पॉइंट डी है, दिस इज योर पॉइंट डी। क्या मूवमेंट होगा, 2 into 3 2 5 + 6 11, डिस्टेंस कितना, 11। तो मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सो -2 into 11, इज देयर एनी प्रॉब्लम, -2 into 11। जे भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज -4, 2 into 11 -4। अब आइए इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर जो लोड था हमारा वो क्या था, 1/2 6 into 5 कितना हो गया, 30/2। लोड कितना आया, 15। एंड दिस लोड विल एक्ट एट दिस डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस L/3। कितने डिस्टेंस के ऊपर ये एक्ट करेगा, L/3 के ऊपर एक्ट करेगा। तो L/3 डिस्टेंस कितना होगा इसका, 6/3। जो होगा 6/3 कितना होगा, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, है ना। तो ये इसका आपका आएगा, मूवमेंट आएगा -30। यू अंडरस्टैंड दिस? तो क्या आएगा इसका मूवमेंट, देखिए -1/2, पहले आप लोड निकाल लीजिए, 6 into 5। नाउ दिस विल एक्ट एट दिस पॉइंट L/3। जो मैक्सिमम लोड होता है अगर उससे हम कैलकुलेट करें तो ये L/3 होता है। L means length from here to here. If the L is 6 meter, the Y3 means 2 meter. So it is into L/3, 2 meter, right? So this is how much? This is, I think, -56 kilo Newton per meter. So this is 56 kilonewton per meter. So these are the 4 movements which we have calculated. These are the
4 मूवमेंट्स विच वी हैव कैलकुलेटेड। और अब क्या करना है अपने, आप अपने प्लॉट ड्रा कर देना है। पॉइंट्स आप मिल गए, आपके सारे मूवमेंट्स आपने सारे निकाल लीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यू अंडरस्टैंड। तो डेटम लाइन हमने ड्रा की थी, एम ए इज इक्वल टू 0 और एम बी कितना है, एम ए 0 है तो एम बी आपका कितना आया। अगर एक पॉइंट ले लो, ये आपका ले लो, ये -6 किलो न्यूटन, एम बी इज -6 किलो न्यूटन। उसके बाद एम बी की दो वैल्यूज होंगी, एक आपकी -6 किलो न्यूटन है और दूसरी आपकी -10 किलो न्यूटन है। तो कह सकते हैं जहां पे -10 किलो न्यूटन मीटर, ये मीटर है ना सारा, यू अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट ये आ गया, 2 पॉइंट। अब एम सी कितना है, एम सी इज -14, तो एम सी इधर ले लीजिए पॉइंट -14, ये आ गया -14 किलो न्यूटन मीटर। और एम डी कितना है, एम डी -56 है, तो ये जहां पे पॉइंट ले लीजिए -56 किलो न्यूटन मीटर, यू अंडरस्टैंड। तो ये 4 पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये ड्रा करेंगे। अब देखते जाइए, अब जहां से देखिए या जहां से देखिए, शेयर फोर्स जहां से लेके जहां तक शेयर फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जहां से लेके यहां तक शेयर फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो होगा बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो जहां से लेके जहां तक बेंडिंग मोमेंट आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, इट्स ओके सॉलिड। अब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट जहां से लेके जहां तक एक सीधा ड्रॉप किया, जिस 6 से 10 सडन चेंज आया, यू अंडरस्टैंड दिस। अब इधर से भी क्या है, W इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम B टू C, और ये बेंडिंग मोमेंट भी आपका क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा। अब आ जाइए इसमें आपका कौन सा लोड है, यूवीएल लोड है। यूवीएल लोड के में क्या होता है, जो शेयर फोर्स डायग्राम होगी, शेयर फोर्स की जो स्लोप होगी, सॉरी, दैट इज पैराबोलिक, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्यूबिक होगा। क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो शेयर फोर्स का जो पैराबोला है दैट इज इन द इंक्रीजिंग, तो वो भी आपका क्या होगा, इन द इंक्रीजिंग साइड के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, इंक्रीजिंग साइड के ऊपर होगा। तो इंक्रीजिंग का इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आ गया इस तरीके से, और जहां से आप इसको आप मिला दीजिए आप, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वी हैव ड्रॉन। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट। ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यू अंडरस्टैंड दिस। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। कंसेप्ट क्या था कि हमारे पास we have the cantilever beam where the couple as well as the uniformly bearing load is acting as well as this point load। तो जो मैंने जो न्यूमेरिकल दिया, जो प्रॉब्लम ली थी, इसमें आपको मैं कंसेप्ट देना चाहता था कि अगर वहां पे मूवमेंट कपल को एक्ट करता है तो उसको आपने किस तरीके से लेना है, और यूवीएल की वैल्यू है उसे किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, किस तरीके से लेना है, जाके आपकी जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो किस तरीके से बनेगी। तो इसमें आई थिंक इस प्रॉब्लम्स में सारी चीजें जो थी, कंसंट्रेटेड लोड भी है, यूवीएल भी है और कपल भी है, वी हैव टेकन। तो कपल का एक पॉइंट जब मैं अगर जहां पे तो मैंने शेयर फोर्स में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब बेंडिंग मोमेंट में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। वन मोर टाइम आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू
कि बेंडिंग मोमेंट हमें क्या करना है कि जितने जहां पे जो पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स के ऊपर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो जहां पे तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एम ए आपका 0 होगा, तो दिस इज जीरो डेटम लाइन एंड दिस इज पॉइंट ए, तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे एम ए इज 0। नाउ कम टू द पॉइंट बी। अगर मैं बी के ऊपर आता हूं तो बी में आप देखिए, बी में एक तो आप सीधा बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए फ्रॉम लेफ्ट साइड, -2 × 3 -6 किलो न्यूटन। लेकिन बी के ऊपर ही आपका क्या है, कपल भी एक्ट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक आपका बेंडिंग मोमेंट -6 होगा और दूसरा क्या होगा, क्योंकि दोनों इन द सेम डायरेक्शन है, दोनों की जो डायरेक्शन है, रोटेशन है, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अगर इधर से मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करता दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पे कपल मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया होता, तो तब जो इसके ऊपर जो नेट बेंडिंग मोमेंट होता दैट इज हमें डिफरेंस करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, 6 - 4 इस तरीके से। यू अंडरस्टैंड दिस? बट हियर कपल इज आल्सो एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस मूवमेंट इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा नेट वैल्यू जो मूवमेंट की होगी, इफ आई विल कंसिडर द कपल देयर, then this is -6 - 4, this is 10 kilonewton. I think this is clear to you. Now at moment at point C, तो C के ऊपर मूवमेंट मैंने निकालना है, तो जहां से कर लीजिए 2 × 5 मूवमेंट एट C, 2 × -2 × 5, और साथ में जो कपल, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज -4, दैट इज -14, तो टोटल आ गया -14 किलो न्यूटन। अगर अब आ जाइए पॉइंट इसमें मूवमेंट एट डी, फर्स्ट 2 × 11 -2 × 11, this is anti-clockwise -4, and now this is a UVL load. First I will calculate the load, -1/2 × 6 × 5, this is your load. Now where this load is acting, this is L/3 from the maximum load side. So if this length is L is 6 meter, L/3 means 2 meter. तो इस तरीके से मैंने ये किया, और दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब आई थिंक कैंटिलीवर बीम के मैंने 2 प्रॉब्लम्स दे दिए। दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, यू अंडरस्टैंड दिस दैट हाउ टू ड्रा द shear force and the bending moment diagram. Now I will discuss about the conclusion of this. अब देखिए इसके conclusion क्या हमें इसमें conclusion मिलता है, what we have got, we will discuss this. तो देखिए, अगर मैं इसके ये आपने नोट कर लिया अच्छे तरीके से, मैं इसको मिटा देता हूं, शेयर फोर्स बेंडिंग, शेयर फोर्स डायग्राम रहने देता हूं, इसको मिटा देते हैं, राइट। सो यू हैव सीन हियर कंक्लूजन की अगर आप बात करें कि हमें क्या कंक्लूड किया हमने, सो कंक्लूजन क्या है हमारा, कंक्लूजन। So you have seen that in case of cantilever beam, the shear force diagram is only at one side, or you can say in the negative side. Shear force diagram जो थी वो सिर्फ एक साइड के ऊपर है, और bending moment diagram is also on one side. आपने देखा this is the datum line, shear force diagram is only one side, this लाइन के जे बिलो ही है, लाइन के ऊपर नहीं। सो हियर द पॉइंट इज व्हाई एक्चुअली द shear force diagram is only on one side. Reason is that the load which is acting on the cantilever beam, that is acting in the downward direction. जो लोड आपका कैंटिलीवर बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है, that is acting in the downward direction. So that causes the shear force diagram in one side only, that is in the negative side only. First point here. Now the point is, when the shear force diagram is only on one side, and if we have to conclude, we have to find out where is the bending, maximum bending moment. Shear force तो maximum कहाँ पे है, that you can calculate by calculating the magnitude. We see the magnitude of the shear force and you can calculate this.
तो जहां पे अगर आपने बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो जो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी बेंडिंग मोमेंट की कि शेयर फोर्स जहां पे चेंज होगी, वेयर द शेयर फोर्स चेंजेस द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एट दैट पॉइंट योर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम. What in case of cantilever beam, you have seen that the shear force does not change the sign here. That is only in one side. So now, if we remember the second part of the definition, तो second part क्या था definition का कि maximum bending moment कहाँ पे होगा, maximum bending moment आपका कहाँ पे होगा, that is जहाँ पे आपका movement होगा, जहां पे आपका कपल एक्ट करेगा, तो वहां पे मैक्सिमम मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट होगा. तो इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, दिस इज योर फिक्स एंड, तो जहां पे क्या होगा, आपका रिएक्शन कपल होगा. देयर इज ए रिएक्शन कपल एट द फिक्स एंड आल्सो. फिक्स एंड के ऊपर रिएक्शन कपल होगा एट द फिक्स एंड. तो आप कह सकते हैं कि योर द बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम एट द फिक्स एंड. तो फर्स्ट इसका जो कंक्लूजन पहला था कि इन case of cantilever beam, shear force and bending moment diagram are only at one side of datum line. You understand that? और क्या सकते हैं, shear force does not change the sign from positive to negative or from negative to positive. Right? ये फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, ये किस लिए है, बिकॉज द लोड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसमें क्या है कि आपका जो लोड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए दैट डजंट चेंज द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसलिए इसका शेयर फोर्स होगी जो ऑलवेज इन द नेगेटिव साइड होगी इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम. दिस इज द वन पॉइंट, दिस इज द वन कंक्लूजन. सेकंड, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज देयर वेयर द कपल इज एक्टिंग. तो जहां पे देखते हैं कि कपल तो इस पॉइंट के ऊपर भी एक्ट कर रहा है, जहां पर भी एक्ट कर रहा है, जहां पे मैक्सिमम कपल एक्ट करेगा, जहां पे मैक्सिमम कपल की वैल्यू होगी, वहां पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा. तो एट दिस फिक्स एंड योर रिएक्शन कपल और कपल यू कैन से दैट इज मैक्सिमम. तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स एंड कहां पे होगा, एट द फिक्स एंड. इस केस में मैक्सिमम मोमेंट बेंडिंग एट द फिक्स एंड. और अगर थर्ड मैं बात करूं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर की, कंट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर. तो मुझे बताइए कंट्राफ्लेक्चर की क्या डेफिनेशन थी. ये मैंने अभी कल आपको बताया कि कंट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका साइन चेंज करेगा फ्रॉम सैगिंग टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. और जहाँ कर्व का जो डिफ्लेक्शन है बीम की, उसका जो कर्वेचर होगा वो चेंज होगा फ्रॉम सैगिंग टू हॉगिंग और हॉगिंग टू सैगिंग. तो जिस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट चेंज होगा, आप कह सकते हैं वहां वो जो पॉइंट होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर. लेकिन जहां पे आपने देखा इन द कैंटिलीवर बीम, जहां पे आपने फाइंड आउट किया, देखा, जब आपने बीम को ड्रा, इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा किया, यू हैव सीन दैट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज आल्सो ऑन ओनली एट वन साइड.
नेगेटिव साइड, एक ही साइड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी, तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डजंट चेंज द साइन हियर, सो कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट जहां पे नहीं होगा, नो कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट, यू अंडरस्टैंड। सो दीज आर द कंक्लूजन वी हैव गॉट इन द कैंटिलीवर बीम। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था कि जहां पे जो शेयर फोर्स डायग्राम होगी वो ओनली वन साइड पे होगी। वो क्यों वन साइड के ऊपर होगी? क्योंकि जो लोड इसके ऊपर एक्ट कर रहा है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ओनली ऑन वन साइड, राइट। और अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की बात करूं तो जो फर्स्ट डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या था कि जहां पे शेयर फोर्स आपका साइन चेंज करेगा, बट हियर शेयर फोर्स डजंट चेंज द साइन, दैट इज ओनली ऑन वन साइड। सो इस केस में यू कैन से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट दैट इज एट द फिक्स एंड, बिकॉज देयर इज द कपल इज एक्टिंग, और जहां पे कपल एक्ट करेगा वहां पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। थर्ड पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, तो जहां पे आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि जहां पे भी आपका जो बेंडिंग मूवमेंट है वो आपका बेंडिंग मूवमेंट साइन को चेंज नहीं करेगा। तो दिस इज आई थिंक दिस इज फॉर टुडे। ये मैंने आज कैंटिलीवर बीम का डिटेल आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, उसके साथ इसका कंक्लूजन भी कंप्लीट करके ये लेक्चर्स दिया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा उसमें मैं शेयर फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम के दो प्रॉब्लम्स को लेकर मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो जो उसमें उस केस में अगर आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम वहां पे साइन चेंज करेंगे, यू अंडरस्टैंड दैट। वहां पे साइन आपका चेंज होगा, शेयर फोर्स का भी और बेंडिंग मोमेंट का भी, लेकिन इस केस में कैंटिलीवर के केस में आपका साइन चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आप अच्छे तरीके से देखिएगा, और जितने भी मैंने जो इसके शेयर फोर्स के और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर पुराने लेक्चर दिए हैं, जो आपने नहीं देखे हैं तो उन भी लेक्चर्स को आप पहले देखें, अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंसेप्ट दिया है। आगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करना या शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रा करना इज नॉट डिफिकल्ट वन। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दिस इज माय एडवाइस फॉर यू टुडे। सो टुमारो आई विल टेक अनदर लेक्चर ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।